ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वापस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो मेरा ये प्रेजेंटेशन बना है वापस से, 4-5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट हम लोग क्या डिस्कस किया था? लास्ट हम लोग जब बैठा था क्या टॉपिक डिस्कस किया था? ग्रेट माइंड, एवरेज माइंड, स्मॉल माइंड डिस्कस किया था। लेकिन एक्चुअली वो टॉपिक का नाम था गॉसिप के ऊपर। गॉसिप क्या था? तो वो क्या था? ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स और स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। तो शायद ज़्यादातर का आंसर शायद स्मॉल माइंड ही था, मुझे पता नहीं आप लोगों ने क्या लिखा था। तो आप लोग मुझे एक बार ये बताइए, मैंने सबसे पहले दिन जब हम लोग मिले थे जून पे, तो उस दिन आप लोगों ने मेरे डीएमओ के बारे में आप लोगों को बताया था। तो थोड़ा सा मुझे कोई एक जन ओवरव्यू दे पाएगा मैंने जो बताया था डीएमओ के बारे में? व्हाट, क्या क्या डीएमओ क्या रिप्रेजेंट करता है, आप लोग क्या सोचते हैं? और थोड़ा सा और एग्जाम्पल। डीएमओ के बारे में मैंने सबको बताया था ऑनलाइन। डीएमओ के बारे में সংস্থাপন দিছে ন ডিয়াময়ে আমাক লগতে আমাৰ অসমৰ মানে কাপোৰ বাহিৰত গৈছে দ্যাট মিন্স আমি এটা কালচাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছো আৰু আমাৰ ওপৰত এটা ৰেসপন্সিবিলিটি আছে বিকজ আমি যদি কিবা এটা কালচাৰ বা ট্ৰেডিশন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আমি ভুলকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব নোৱাৰো দ্যাট মিন্স আমাৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজটো ৰাইট হ'ব লাগিব এভৰিথিং উইল বি ৰাইট বিকজ সেইটো এটা অপৰচুনিটি হয় আমাৰ কাৰণে আদাৰৱাইজ আমি কি কৰিম ইনসাল্ট কৰিম কাৰ ইনসাল্ট কৰিম অসমৰ ইনসাল্ট কৰিম যে যদি আমি বিহুৰ ইনসাল্ট কৰি আছো তো কিহৰ ইনসাল্ট কৰি আছো অসমৰ ইনসাল্ট কৰি আছো ট্ৰেডিশন ইনসাল্ট কৰি আছো আৰু আপুনি এইবিলাক ইনসাল্ট কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ অধিকাৰ নাই হয়নে সো এতিয়া আমি আগুৱাই যাওঁ দিয়া মই বিষয়ে সেইটো কৈছিলোঁ আজিৰ টপিক হয় লাভ এভৰিথিং সবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে এইটো সবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে তো মই সৰুৰ পৰাই বাদ गौतम सर हाई ऐसे बताइए तो इसका मतलब क्या होता है बस कहानी खत्म इससे ज्यादा कुछ नहीं इससे ज्यादा कुछ नहीं मतलब पहली बार जब मैंने दिखाया ना ये वाला तो सबके माइंड में आ गया होगा ये जबरदस्त टॉपिक है मेरा लास्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा किसी किसी का यहाँ पे किसी का बचपन से भी एक्सपीरियंस होगा किसी का स्कूल से भी एक्सपीरियंस होगा हो सकता है करेक्ट नहीं मैं भी गलत भी हो सकता हूँ तो मुझे ये बताइए एक्चुअल लव का मीनिंग क्या है असलियत में केयर तो एक वर्ड है এইটো পারফেক্ট দিছে তেও মনৰ পৰা পাব লাগে যিকোনো মানুহৰ কাৰণে ধনী নহয় তাই ধনী কিমান মানে চেহেৰাটো কেনেকুৱা এইটো চাইটো ভাবিব নালাগে অকল সেইটোৱে মানে ভাল পোৱাটো হেলে বুলি কয় হয়নে একচুয়ালি লাভ যোনটো হয় এইটো এটা ইনটেঞ্জিবল এসেট বুলি কয় ইনটেঞ্জিবল মানে যোনটো আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো টেঞ্জিবল মানে এইটো টেঞ্জিবল হয় এইটো আমি টাচ কৰিব পাৰিছো মই এইটো ল্যাপটপ টাচ কৰিব পাৰিছো এসেট মানে যোনটো বস্তুৱে আমাক পইচা দিয়ে বা আমি তাৰ পৰা কিবা এটা কমাব পাৰো সেইটো কি হয় এসেট সাপোজ মই এটা গাড়ী ললো আৰু সেই গাড়ী লোৱাৰ পিছত মই 2 বছৰলৈকে ইএমআই ভৰি আছো আৰু 2 বছৰ পিছত গাড়ীটো কি হ'ব গাড়ীটো কি নতুন হৈ যাব নে পুৰণা হ'ব মই গাড়ীটো যদি 30,000 টকা লৈছো 2 বছৰলৈকে ইএমআই ভৰি আছো তাৰপিছত 30,000 গাড়ীটো কি 25,000 হৈ নাযায় জানো 2 বছৰ পিছত না 35,000 হ'ব কমি যাব আলটিমেটলি 2 বছৰ কাৰণে মোৰ মাথা টেনচন থাকি গ'ল তাৰ পিছত গাড়ীটো দামটো কমি গ'ল সেইটো মানে এটা লাইবিলিটি মোৰ ওপৰত আৰু মান্থলি যোনটো ইএমআই দিব লাগে সেইটো তো প্ৰেছাৰ এটা মাথা থাকিব হয় না প্ৰেক্টিকেল মই কথা কৈ আছো সেম সেম তেনেকুৱা লাভ এটা ইনটেঞ্জিবল এসেট হয় যোনটো আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো অকল ফিল কৰিব পাৰো আৰু এইটো এনেকুৱা এটা এসেট হয় যোনটো মানে সৰুৰ পৰা একদম যেতিয়ালৈকে আমি এই পৃথিৱীত থাকো এইটোহে এটা এনেকা বস্তু যোনটো বস্তু আমাক সদায় কিবা না কিবা বাকি সব বস্তু আমাৰ পৰা কিবা না কিবা লৈ যাব কিন্তু এইটো এটা এনেকুৱা বস্তু
যোনটো আমাক সদায় দিব। যেতিয়া আমি সৰু থাকোঁ তেতিয়া আমি মাকৰ মৰম পাওঁ। সেইটো একচুৱেলি যদি ৰিয়েল চেন্স মই যদি ক'ব যাওঁ, লাভ হয় অকল এটা মা আৰু বাচ্চাৰ মাজত। এণ্ড এভৰিথিং বাকীবিলাক যি হয় সেইটো ইট ইজ নট লাভ, সেইটো এট্ৰেকশ্যন। লাভ মিনিংটো হ'ল যে আপোনাক কোনোবা ভাল পোৱা নোপোৱা হেৰি কৰা নকৰা সেইটো নহয়। আপোনাৰ পইণ্ট অফ ভিউ যে আপুনি আপোনাৰ ওচৰত যোন মানুহ আছে তেওঁৰ বিষয়ত কেনেকৈ ফিল কৰে, সেইটো হ'ল একচুৱেল লাভ। বুজি পাইছে? ছাপ'জ মই আপোনালোকক গালিও পাৰি আছোঁ, ছাপ'জ গালি পাৰিছোঁ বা আপোনালোকে কিবা মোক বেয়াকৈ কৈছে, যদি সেই বেয়াটো কৈছে तथापिও मैं আপোনালোকৰ माने मतलब आप लोग के बातों को अगर माइंड में न लेते हुए भी अगर आप लोगों को मैं कुछ अच्छा शिक्षा दे रहा हूँ, इसका मतलब डेफिनेटली मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। तो ये इंटेंजिबल एसेट है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कोई लड़का लड़की को प्रपोज कर रहे वो प्यार हो गया, वो सब तो अट्रैक्शन है, समझ रहे हैं? तो एक्चुअल जो लव होता है वो होता है, और ये एक ऐसा लव क्रिएट होता है कस्टमर और सेल्समैन के बीच में। और ये वही लव है जिस कारण जो कस्टमर 2000 का सामान लेता है वो 4000 का नहीं लेता। क्यों? क्योंकि लव इंटेंजिबल एसेट है जो दिखता नहीं है लेकिन हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ दे के जाएगा। लेकिन हम लोगों ने माइंड में ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है कि कोई आपको प्रपोज कर दिया है या फिर ये कर लिया तो वही लव है, छोड़ के चला गया तो पूरा दुखी। नॉनसेंस है वो सब, बकवास है वो सब। जो एक्चुअल लव है वो आपको इंडिपेंडेंस देता है, कुछ छूट देता है, आपको कुछ करने का आज़ादी देता है। तुम मुझसे बात मत करना, मैं बात नहीं करूँगा, ये सब बकवास है। ऐसा बहुत के लाइफ में हुआ होगा, मेरे लाइफ में भी हुआ है, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो वो सब बकवास है। एक्चुअल लव मतलब आपको कुछ करने का आज़ादी देता है, आप जो चाहते हैं। समझ रहे हो बात? तो इसको मटेरियल चीज़ से मत मिलाएगा, ये एक अदृश्य चीज़ है जो हम लोग को जिंदगी भर कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इसको लिख लीजिए अपने शब्दों में। मैं सही समझा पाया ना आप लोगों को? शिवानी में हम ज़्यादा रिलेट कर पाई होगी, सुनीता में हम ज़्यादा रिलेट कर पाई होगी। नहीं। प्रणाली में भी रिलेट कर पाई होगी थोड़ा, क्योंकि एक्चुअल लव माँ और बेटे मतलब माँ और बच्चा के बीच में हेटू लव है, हेटू एक्चुअल। इसे आगे बढ़ो। मतलब मैंने क्या बताया कि ये आप लोगों को हो जाएगा, रन दीजिए, इसके लिख लेने से हो जाएगा, समझ में तो आ जाएगा। ये जो है, ये जो शब्द है, ये आप लोगों को आज़ाद करता है ना? इस किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा आपका। जैसे एक बच्चा अगर होता है, एक बच्चा और माँ का बीच का रिलेशन इतना अच्छा होता है कि माँ बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है, कुछ भी उम्मीद ही नहीं कर रही, लेकिन कुछ उम्मीद ना करने के बावजूद भी अगर वो बच्चा कितना भी कुछ करे फिर भी वो एक अंदर से एक लव बना रहता है, एक वो एक प्यार बना रहता है। वो असलियत चीज़ है, वो उसको लव कहते हैं। नो एक्सपेक्टेशन गिव इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 4 तरीके के लव के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाला है उसके बारे में बताऊंगा 2-3 स्लाइड के अंदर। पहला जो फैमिली लव मैंने आप लोगों को बता दिया। फैमिली मतलब हम लोग के परिवार के जो होता है, परिवार के बीच में हस्बैंड वाइफ या फिर जैसे भाई बहन, है ना? तो इस तरीके का मम्मी पापा, फिर इस तरीके ये सब, ये हम लोग का फैमिली लव। एक होता है पीपल्स लव, हम लोग जब कोई लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करने का मतलब जैसे मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये हम लोग का एक प्यार है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वरना अगर हम लोग एक आपस में गुस्सा कर रहे होते तो क्या मैं बैठ के आप लोगों को बता रहा होता? नहीं बता रहा, सर डांट के काम करवा रहा होता, है ना? बात ये है। तो ये दूसरे तरीके का। थर्ड जो है पर्सनल लव। पर्सनल लव तो आप लोग समझते होंगे, चुपचाप फोन पे बताता है वो एक तरीके का लव है। ये नया क्रिएट हुआ है 21वीं सदी में, पहले ऐसा नहीं था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये समझिए कि ये 3 जो है ना, ये तीन तभी असलियत में पॉसिबल है जब ये पॉसिबल हो।
और ये शुरुआत में पॉसिबल है, लेकिन जब आप लोग हम लोग जिस लेवल पर है, जिस करियर पे हम लोग है अभी, उस करियर पे ये तीनों तभी पॉसिबल है जब ये होगा। एक बच्चा ये कर सकता है तीनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके सर पे कोई बर्डन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेगा ना, तो हम लोगों को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आप खुद सोच के देखिए, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ या फिर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे एग्जाम्पल, तो आप खुद ही सेटिस्फाइड रहेंगे क्या? खुद सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। अगर खुद सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो फैमिली में क्या, फैमिली से आप उस हिसाब से प्यार कर पाएंगे, समय दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लोगों से प्यार, अपने आप से आप नफरत कर रहे हैं, अपने काम से प्यार अगर कर ही नहीं रहे हैं तो दूसरे से कैसे आप प्यार कर पाएंगे, कैसे उसे एहसास दिला पाएंगे? और ये तो वर्क नहीं करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिंदगी में सबका चलता रहता है, चल ही रहा होगा शायद। तो ये मतलब जो वर्क लव है, ये अभी के डेट में हम लोग जब 20s पार करता है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं जो जानता हूँ, जहाँ तक समझ पाता हूँ। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये वर्क लव के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसका फोटो ले लीजिए आप लोग, अगर पॉसिबल हो ज़्यादा बेटर। मैं ये सब बताने का मकसद है कि आप लोग को प्रैक्टिकल लाइफ से मैं रिलेट कर रहा हूँ, तब जाके ही ग्रोथ आने वाला है, ऐसे ग्रोथ नहीं आएगा। फेस ऑन करेंगे पाएगा ये आप लोग के लाइफ के हर मुकाम पे ये साथ देगा, ये सब कंटेंट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वर्क लव, यानी तीनों जो मैंने लव बताया, फैमिली लव, पीपल्स लव और पर्सनल लव, ये तीनों प्रोपोर्शनल है अगर वर्क लव हुआ तो। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो काम से अगर आप प्यार करते हैं तो ये जायज़ है कि आप फैमिली में जाके खुश रहेंगे, उनसे प्यार करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे, और पर्सनल जो है वो तो होगा ही। समझ रहे बात? तो अब जो वर्क लव है, अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हैं कि अरे झाड़ू मारवा रहे, आज मेरा नहीं है दीक्षिता ये दान, अरे कल तो मैंने किया था, आज दिशा तुम कर दो। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। एक दो आदमी को क्रिटिसाइज करना पड़ सकता है और एक दो आदमी को अप्रिशिएट भी करना पड़ सकता है। तो वो सबसे पहला सिम्टम है कि आप अपने काम से रियली प्यार नहीं करते। एक फ्रस्ट्रेशन अलग है कि बहुत काम करके थक गया हूँ, वो एक अलग है कि मैं थक गया हूं तो मैं मना कर रहा हूं, तो वो आदमी को समझ में आता है। और एक होता है जो मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, नहीं करूंगा, क्यों, मैंने कल किया था, है ना। ये सबके साथ होता है, एक आदमी के नहीं, ये आप लोग मिला लीजिए, ये सबके साथ होता है। और यही वो कारण है जिस कारण मैंने बताया कि आपको रिसीव करना है, जिस कारण आप लोगों ने बनाया कि झाड़ू कोई और मारे, है ना। ये वही कारण है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली हम लोग अपने काम से प्यार करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग अनसेटिस्फाइड। अगर हम अपने काम से ही प्यार नहीं करेंगे, हम जो अभी काम कर रहे हैं यहाँ आके, तो हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे। समझ पा रहे बात? अब अगर हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम लोग सिर्फ एक चीज के लिए काम कर रहे होंगे, 1 तारीख से 30 तारीख, 1 तारीख से 30 तारीख, 1 तारीख से 1 तारीख आ गए, 5 तारीख के है ना। तो अगर हम लोग सिर्फ इसके लिए काम करेंगे, वर्क मनी होंगे बस, इतना 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितना भी मिले, जिसको जितना मिलता हो वो अलग है। लेकिन अगर हम लोग अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, और सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग को सिर्फ किससे मतलब होगा, पैसे से मतलब होगा। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, एक लड़की प्लीज डोंट माइंड अगर किसी को बुरा लगे, तो मेरे घर के पास में है। तो उसका क्या हुआ, जैसे शादी हुआ उसका, तो उसका हस्बैंड इलेक्ट्रिक से काम करता था, अचानक से वो लगा लाइन, और वो मतलब पोस्ट से गिर उसका डेथ हो गया, 7 मंथ हुआ। अभी उसके हाथ में 2 ऑप्शन था, वो लड़की के हाथ में, वो दूसरा शादी भी कर सकती है और जायज़ है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसका एक मम्मी है, वो लड़के का, वो मम्मी एजेड है, बूढ़ी है, अकेला है उसका मम्मी, कोई नहीं देखने वाला है। और उसका वो जो शादियों की जो गई थी वो अपने घर में आ गई, और वो लड़का जो काम करता था वो एक्चुअली सरकारी नौकरी था, तो सरकारी नौकरी का एक पेंशन मिलती है। तो वो पेंशन जो मिलता है, अब झगड़ा चल रहा है कि लड़की पेंशन रखेगी या माँ पेंशन रखेगी।
इसका मतलब क्या है, वो शादी किस लिए की? वो लड़की का जो शादी की थी, मतलब दिख रहा है ये चीज। उसका माँ बूढ़ा है, कोई नहीं है उसका माँ को देखने वाला। अगर मान के चलिए वो छोड़ देती है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए छोड़ देती है, तो 5 साल बाद तो मम्मी वैसे भी ऊपर जाएगी, इसके बाद तो वही लेगी ना। उसका लाइफ तो पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, तो पूरा लाइफ एंजॉय कर सकती है, लेकिन वो पैसे के पीछे पड़ेगी, तो वो गलत चीज़ है, टोटली गलत। तो ये हम लोग को नहीं करना है। तीसरा, वर्क लाइक अ वर्कर, हमें बस काम जैसा काम करना है। मैं नौकर हूँ, नौकर जैसा काम करूँगा बस। मैं सुबह 9:30 बजे आ जाऊँगा, शाम को 7:30 बजे चला जाऊँगा, जो काम दिया जाएगा कर दूँगा, या बोल दूँगा कि कल किया था आज नहीं। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके का है कि सिर्फ बस काम करना हो और कुछ नहीं करना। अगला क्या, कोई ग्रोथ नहीं होती। देखिए, काम का मतलब क्या होता है? आप क्लास 1 में क्यों पढ़ रहे होते हैं? मैं क्लास 1 में क्यों पढ़ रहा हूँ? क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या कारण है कि 1 पढ़ के मैं आगे क्या करूँ? तुम जिंदगी भर क्लास 1 पढ़ेंगे क्या? जिंदगी भर डिग्री पढ़ते रहेंगे क्या? डिग्री क्यों पढ़ते हैं? ताकि डिग्री करने के बाद अच्छा जॉब मिले। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ। अब हम जो काम कर रहे हैं, हमें जो जॉब मिल गया, हम वो जॉब कर रहे हैं, बस पैसे मिले। इसका मतलब हम अपने काम से ही प्यार अगर कर ही नहीं रहे तो ग्रोथ पॉसिबल है क्या? ग्रोथ पॉसिबल है। ग्रोथ का मतलब ये लंबा होते जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रोथ का मतलब एक मेंटली ग्रोथ। जब आपको आपके बातों में झलकेगा, जैसे दिशा में उनके बातों में झलकता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, समझ रहे हैं? उससे ग्रोथ बोलता है। लास्ट है अनेबल टू लर्न वैल्यूएबल स्किल्स। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो जो एक्चुअल स्किल्स है उस काम के अंदर वो आप नहीं सीख पाएंगे। अभी मान के चलिए, मैं जो फोन चलाता हूँ, कभी नीतूमणि मैम नहीं आती है तो उनका फोन चलाता हूँ, कभी दीक्षिता मैम नहीं आती है तो उनका भी चलाता हूँ। तो मैं तो नहीं भी चला सकता, लेकिन मैं चला रहा हूँ बिकॉज मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, मुझे मजा आता है करके। और जब मुझे काम करके मजा आता है, मैं कुछ नहीं, कुछ कपड़े के बारे में जानता था, लेकिन यहाँ जाने के बाद मुझे पता चला पाट मुगा क्या होता है, प्योर पाट क्या होता है, मिक्स पाट क्या होता है, सब पता चल गया मुझे। अब लगभग मैं कपड़े के बारे में जानने लगा हूँ, और कल को अब मैं कोई मेरा पर्सनल के लिए भी तो मेरे को खरीदना पड़ सकता है। तो जो इंसान मेरे को बोलेगा ये 10,000 है, तो मैं तो बोल पाऊंगा ना कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये 10,000 नहीं हो सकता, ये 8,000 में मिलेगा। इसका मतलब क्या, मेरा स्किल्स बढ़ाया। समझ रहे हैं ना बात? तो वो क्यों होगा? मैं सीखूंगा तभी तो होगा। मेरे को तो ये भी बोलेगा कि कोई बात नहीं, आप जो मोबाइल है वो दिशा में मैं दीक्षिता मैम को देके हैंडल करवा दो, लेकिन मैंने खुद हैंडल किया ना रिटेल मोबाइल। क्यों किया? सीखने के लिए किया, क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, करता था नहीं, करता हूँ। तो वैसा आप लोगों को करना पड़ेगा। एक बार में बोल दी, एक बार में कोई अगर बोले अगर आपको काम कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक में, आप अपने काम को कर। एक बार में अगर कोई बोल, और अगर आपने ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया बजाय कोई कारण के, जिसका तबीयत खराब है या फिर कुछ वगैरह वगैरह है, जैसे कल मैम का तबीयत भी खराब था, ममता मैम का, फिर भी वो फोटो खिंचवा रही थी, तो भले वो प्रेशर में आके खिंचवाए, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा अपने काम के प्रति उनका एक जागरूकता आ गया है ना ममता मैम? 100% नहीं है, थोड़ा सा मजबूरी में भी खिंचवा रही थी, नहीं तो अमन सर बोलेगा 50 मिनट, क्या पता शाम को भी बुलाए जाते रहे फोटो। लेकिन एक अच्छा सिम्टम है जो 100% नहीं तो कम से कम थोड़ा सा तो आया, तो वो एक स्किल है जो आपका बढ़ेगा नहीं। समझ रहे? तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये होगा, और अगर आप करते हैं तो आप जब काम करेंगे आपको खुशी मिलेगी, मजा आएगा। मैं जब सेल करता हूँ ना, बड़ा मजा आता है। ताली किस लिए बजवाता हूँ? दीक्षिता मैम ताली क्यों बजवाता हूँ? हैप्पीनेस के लिए, मजा आता है ना, तो और एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है, यस मैं और 2 करूंगा, और 3 करूंगा, और 4 करूंगा, तो वो मजा आएगा। दूसरा, काम कभी भी सेल्फ प्राइड के लिए, अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे ना तो अपने प्राइड के लिए काम करेंगे। ये इसलिए काम नहीं करेंगे आप लोग कि मैं किसी को दिखाता हूँ मैंने 5 लाख का रेवेन्यू कर दिया, नहीं। 5 लाख का रेवेन्यू कर देंगे तो पैसा अलग बात है, वो मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन आपको, आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा। आप अगर किसी और का काम 100% सही तरीके से कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी। इसके बाद वर्क फॉर सेल्फ प्राइड, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा।
तीसरा वर्क लाइक एन इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर मतलब एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर मतलब लाइक एंटरप्रेन्योर ही होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपना बिजनेस चला रहा है। जैसे ये बिजनेस का ओनर मैं बोलूँ मौसमी मैम और शंकर सर हैं, तो वो लोग एंटरप्रेन्योर मान लीजिए। लेकिन हम लोग सब क्या है, एम्प्लॉय है, स्टाफ है। ये गलत है, ये सोच ही हम लोग का गलत है। एक इंस्टीट्यूशन तब बड़ा होगा जब वहाँ पे इंट्राप्रेन्योर बनते हैं। इंट्राप्रेन्योर का मतलब होता है कि ये बिजनेस सिर्फ मौसमी मैम, सिर्फ शंकर सर का नहीं है, ये हमारा है। यहाँ सिर्फ हम सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे, इसको ग्रो करवाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये माइंडसेट जिस दिन से आप लोगों के दिमाग में आ गया, उस दिन से आप लोग एम्प्लॉय नहीं है, याद रख लीजिए। उस दिन से आप लोग एम्प्लॉय नहीं है, उस दिन से आप लोग इंट्राप्रेन्योर बने। एम्प्लॉय का वैल्यू नहीं होता है इस दुनिया में, एम्प्लॉय का वैल्यू नहीं होता है, ये बात आप मान लीजिए। इंट्राप्रेन्योर का वैल्यू होता है, और इंट्राप्रेन्योर में कुछ नया सोच सकता है, कुछ क्रिएटिव कर सकता है। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, अगर विनीता मैम कुछ गलती कर रही है, अगर शिवानी मैम कुछ गलती कर रही है, अगर रेशमी मैम कुछ गलती कर रही है, तो गलती करना बड़ा अच्छी बात है। लेकिन सामने वाला अगर देख के उनको बता रहे हैं हाँ रेशमी मैम ऐसा गलती हो रहा है, इसको अगर ऐसे करे तो कैसा रहेगा, दैट इज द इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट। मतलब आप किसी को इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं, सिर्फ गलती नहीं, इंप्रूवमेंट करवाए। जैसे मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था बापन सर ने वो जो करवाने वाला, तो वो इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट, वैसा माइंडसेट होना चाहिए आदमी का, तब जाके लाइफ में ग्रोथ पॉसिबल है। सिर्फ हम लोग का ग्रोथ नहीं, हम लोग के आने वाले जनरेशन का ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम लोग सही यहाँ दिमाग में सही चीजें डालें, है ना, है कि नहीं बिंदु? आज जो आप सीखेंगे कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में रहेगा, तो आप अपने बेटे या बेटी को तो बताएंगे या नहीं? ऐसे भी शिवानी मैम आप तो बताएंगे ना कभी, है ना मैम? आप तो बताएंगे ना कहीं। इसका मतलब आप सिर्फ तैयार नहीं हो रहे, आप आने वाले जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग, इसलिए अपने काम से प्यार करना सीखिए। और काम से प्यार करेंगे, उस दिन से आप लोग एम्प्लॉय नहीं, उस दिन से क्या बनेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, इंट्राप्रेन्योर बनेंगे। इंट्राप्रेन्योर बनना है ना, इंट्राप्रेन्योर। एम्प्लॉय का वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का इसलिए वैल्यू है, मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने यहाँ पे घमंड करके नहीं बोल रहा, भगवान की कृपा से मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था, मुझे रिक्वेस्ट किया गया। लेकिन हम लोग को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब ढूंढने होता है, वो आते हैं जॉब मांगते हैं, दैट इज द एम्प्लॉय माइंडसेट। जो इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट का होता है उसको जॉब मांगना नहीं पड़ता, उसके पास जॉब आती है, भाई आ जाओ। बस वो छोटा सा ही डिफरेंस है, छोटा सा, और वो कोई भी एज में किया जा सकता है, कोई 60 साल का है तो भी, बस माइंडसेट क्या बनाना पड़ेगा। और अगर इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट बन गया, याद रखिए शिवानी मैम, तो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ पॉसिबल है। हर दिन आप सीखेंगे कुछ, और हर दिन आप ग्रो करेंगे। और अगर हर दिन ग्रो करेंगे, इसका मतलब क्या है, आप लोग हर दिन कुछ नया स्किल्स लर्न करेंगे। आप हर दिन 50 फोटो खींच रहे हैं, अच्छी बात है। ब्रूस ली का कहना भी है कि आप 10,000 तरीके का कांटा से डर नहीं लगता, उसको एक कांटा से अगर 10,000 बार प्रैक्टिस किया उसे डर लगता है। आप 50 फोटो करके कंटिन्यू 2-3 महीने खींचेंगे, आप डेफिनेटली अपने फोटो खींचने के तरीके में इंप्रूवमेंट देखेंगे आप लोग, अगर प्यार से कर रहे हैं तो। जैसे नेहा मैम करती है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और वो प्यार से करती है, भले वो कभी 30 खींच दे, कभी 35 खींच दे, लेकिन वो जेन्युइनली करती है कि मुझे करना पड़ेगा ना, मुझे करना है, मेरे लिए अच्छा है। और वो इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट है। जैसे बीच में दीक्षिता मैम ने किया, 215-20 कॉल्स कर दिया, थोड़ा सा प्रेशर दिया तो वो एक इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट है। तो माइंडसेट इंट्राप्रेन्योर आता है हम लोगों के अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे जाते रहते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि हम इंट्राप्रेन्योर बने, कुछ सोचें, कुछ करें, ऐसा दिमाग में बहुत फालतू होते हैं, ये नहीं चाहते हैं। चाहता है कि कोई बोले और हम करें, कोई बोले और हम करें। ये सबके साथ में दिखता है कि ये गलती हो रहा है, लेकिन नहीं करूँगा जब तक कोई बोलेगा नहीं। तो वो एम्प्लॉय। तो डिसीजन अब आप लोग के हाथ में कि अगर आप लोग को अपने काम से प्यार करना है तो ही जाके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से चल के उधर चले गए, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, सही सोच लाएंगे,
अगर आप लोग काम से प्यार करेंगे, काम अगर आपके जैसे बिंदिया मैम यहाँ पे आके दिन भर इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है, ये करती है वो करती है, सारा काम करती है वो, हैप्पी भी रहती है, घर में जाके अब लड़का मतलब बेटा बेटी को उन लोग को भी हैप्पीली बताती होगी, बात करती होगी, लेकिन हम लोग थक सकता है एक बिस्तर के ऊपर हो गए, कहानी खत्म, यहाँ से गया, थकेंगे नहीं आप लोग अगर काम से प्यार करना चालू करेंगे। इसीलिए एक बहुत बढ़िया कहावत है, कंसंट्रेट ऑल योर थॉट अपॉन द वर्क इन हैंड। आपके हाथ में जो काम है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर जोर लगाइए। द सन रेज डू नॉट बर्न अंटिल ब्रॉट टू अ फोकस। सूरज का किरण एक कागज को तब तक नहीं जला पाता जब तक उस सूरज का किरण को एक जो होता है ना लोग लेंस, उससे सामने जब तक एक फोकस ना दिया जाए उसको, तब तक नहीं जल पाता। तो डिपेंड यही करता है कि आप लोगों का जो हम लोग का 4 तरीके का प्यार है, 3 तरीके का प्यार अभी के सिचुएशन में हम लोग जिस एज ग्रुप में है, अगर हम अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, वो हम घर का काम कर रहे हों, वो हम जहाँ ऑफिस में आके जो काम कर रहे हैं, तो ये जायज़ है कि बाकी का 3 काम हम कभी अच्छा कर नहीं सकते। इसलिए मैं आप लोग का है आज से बहाना मारना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना है। पहला 10 दिन 15 दिन बहुत प्रॉब्लम, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा। और ताली बजाइए जोर से, ठीक है।